Hello everybody. So today we'll be doing part 3 of the parties and party systems in India. Part 3 deals with fall of the Congress system. Now I hope you have seen part 1 and part 2 of this chapter. Part 1 deals with the basic concept regarding to political parties. Part 2 deals with how Congress rose to power, and in this third part we'll be doing how Congress came down, how there was the fall of the Congress system. So without wasting our time, let us quickly begin with the part. So we have fourth general elections in 1967. Let me recapitulate regarding these elections first. First general elections took place in 1952, then second one in 1957, then third one 1962, and these are the fourth one 1967. Now in 1967 general elections, basically before I tell you about this 1967 general election, I would like to give you the background of the story, that what happened basically in 1960s. We have basically done till 1962, right? That how Nehru ji he came to power. Now this period of 1960s, basically this decade, it is considered most difficult decade in the politics of India. Fine, because many changes took place in this period. There were a lot of changes which took place. That is why it is considered most difficult decade. Now when 1962 elections took place, that were the third general elections of India. At that time, Congress, they won by 3/4 of majority, means 70% seats went in favor of Congress. And Congress, they came in power at center also and in state also. It means almost all the states they had the Congress party. Fine. Then I told you this 60s period, complete 60s, it was a very difficult period in Indian politics. How? First of all, two wars were fought in 60s, two very important wars of our Indian history. That is in 1962, Indo-China war was there, regarding which we have already done in our previous chapter. Now in this chapter, in this war, India did not perform well. We all know that. Fine. Then next one was 1965 war, in which Pakistan, they attacked India, and India retaliated. India also tried to defend itself, and in this war we cannot say that we won, but we did not lose also. Fine. Means this war was the war of equality. एक बराबरी की लड़ाई थी. जैसे इंडिया चाइना में, तो चाइना काफ़ी आगे था हमसे टेक्नोलॉजी वाइज. चाइना काफ़ी हद तक जीता था. बट ये जो 1965 की वॉर थी, इसमें ना हम जीते, ना पाकिस्तान जीता, ना हम हारे, ना पाकिस्तान हारा. मीन्स एक बराबरी की लड़ाई थी इसमें, और दोनों कंट्रीज़ का बहुत भारी नुकसान भी हुआ था. ठीक है. तो इन टू वॉर्स की वजह से 1962 वॉर इंडो चाइना एंड 1965 वॉर इंडो पाकिस्तान वॉर, इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो गई. मतलब काफ़ी हमारा पैसा वेस्ट हुआ इन टू वॉर्स में, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई लड़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है उस चीज़ में. ठीक है. और ये दो लड़ाइयाँ हो गई 3 साल के बीच में, तो इट वॉज़ अ वेरी हैवी प्रेशर ऑन द फाइनेंस ऑफ इंडिया. काफ़ी पैसा वेस्ट हुआ. और अगर हम पॉलिटिकली बात करें, पॉलिटिकली ऑल्सो देयर वाज टर्मोइल मीन्स एक कन्फ्यूजन था पॉलिटिकली भी. 1964 में आपको पता है, 1962 में पंडित नेहरू कांग्रेस पार्टी जीती. 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है. ठीक है. पंडित नेहरू ही डाइड इन 1964. तो उनके बाद बीइंग कांग्रेस पार्टी एज अ रूलिंग पार्टी, लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, क्योंकि एक पार्टी के बीच में ये एक म्यूचुअल कॉन्सेंट था. सभी लोग चाह रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी को बना दे जाए, क्योंकि वो अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए माने जाते हैं, काफ़ी फेमस थे. तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया. ऑल्दो उस टाइम एक और कांग्रेस में बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर थे, मोरारजी देसाई. अब ये नाम याद रखना, ये आगे के 10 साल की पॉलिटिक्स में ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. ओके. सो
मोरारजी देसाई भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे नेहरू जी की डेथ के बाद, बट पार्टी के सभी लोगों ने जब लाल बहादुर शास्त्री जी का नेम दे दिया तो ये पीछे हट गए, ये चुप रह गए, एंड लाल बहादुर शास्त्री जी ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन आपको पता 1965 की वॉर हुई, इंडो पाक वॉर हुई। तो इंडो पाक वॉर के बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए। फाइन ना, ताशकंद में ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है। ताशकंद ये क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ पे सीज फायर का, इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, यूएसएसआर ने बुलाया था और वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करने गए थे, जिसको बोला जाता है ताशकंद एग्रीमेंट, जिसके होते हुए ये लड़ाई ख़त्म हुई थी। फाइन, तो वहाँ पे शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर। कई लोग कहते हैं हार्ट अटैक नहीं हुआ था, कुछ और प्रॉब्लम हुई थी, बट मैनी से इट वाज अ हार्ट अटैक। मतलब ये बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि उनकी डेथ कैसे हुई। ठीक है, अब शास्त्री जी की डेथ होगी, अगेन कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी, क्योंकि 1962 में इलेक्शन हुए थे, नेक्स्ट इलेक्शन 1967 में होने थे, इनकी डेथ 66 में हो गई। तो यहाँ पे भी मोरारजी देसाई को था कि अब शास्त्री जी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो मैं बनूंगा, बट यहाँ पे भी देसाई को प्राइम मिनिस्टर ना बना के इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। रीज़न बीइंग इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बना दिया गया? यहाँ पे जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसके बीच में देयर वाज डिवीजन ऑफ वोट्स। कुछ कह रहे थे कि मोरारजी देसाई और मैक्सिमम कह रहे थे इंदिरा गांधी। ठीक है, और इंदिरा गांधी को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ही देयर वाज डिवीजन ऑफ वोट। सो इंदिरा गांधी शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1966। अब इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग देयर इज एन यू कैन से फैक्ट कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट्स की हेल्प मिली। ठीक है, देयर वाज वन ग्रुप ऑफ पीपल इन कांग्रेस जिनको सिंडिकेट्स बोला जाता था, ये याद रखना, SYNDICATES। तो सिंडिकेट्स बोला जाता था। उन लोगों ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट दी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको ज़्यादा वोट डले एंड शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम बात करें मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में, मोरारजी देसाई ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस लीडर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बट इंदिरा गांधी शी वॉज न्यू टू पॉलिटिक्स, नई थी पॉलिटिक्स में, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। बस उन्होंने कुछ ही पोस्ट संभाली थी, जैसे 1959-1960 के बीच में वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही थी, और जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री, तो उनकी कैबिनेट में शी वॉज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं होती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थी, आज के टाइम में तो फिर इस मिनिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो शी वॉज दैट मिनिस्टर, बट फिर भी इंदिरा गांधी को ज़्यादा सपोर्ट मिली सिंडिकेट्स की हेल्प से। अब इसके पीछे क्या कारण था? अब जो सिंडिकेट्स थे दे सपोर्टेड इंदिरा गांधी, क्योंकि उनको था कि इंदिरा गांधी इज़ वेरी वीक, ये वीक कैंडिडेट है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो हमारा दबदबा बना रहेगा, हमारा पॉलिटिक्स पे कंट्रोल बना रहेगा। तो इस और हमारा इन्फ्लुएंस हमारा पार्टी के बीच में, सिंडिकेट्स को ये था हमारा पार्टी के बीच में एक इन्फ्लुएंस, एक दबदबा, एक रोब, एक स्टेटस इंक्रीज रहेगा, हम इसको इंदिरा गांधी को अपनी मर्जी से चलाएंगे। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को वीक समझ के उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। ठीक है, तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। अब 1966 की बात आई है व्हेन शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। नाउ वी विल टॉक ऑफ द फोर्थ जनरल इलेक्शन। 1967 का टाइम पीरियड आ गया, 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए, और ये 5 ईयर्स में आप ये देखो एक वॉर हुई और 3 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन से कि ये बहुत मुश्किल टाइम था इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। सो लेट अस टॉक ऑफ 1967 नाउ। 1967 में फिर जनरल इलेक्शंस हुए, उन जनरल इलेक्शंस में भी इंदिरा गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनी, रीज़न बीइंग उसको सपोर्ट मिल रही थी सिंडिकेट्स की। ठीक है, सो शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनी शी वॉज द सेंटर ऑफ ऑल द शी बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉब्लम्स के बीच में घिरी हुई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब क्या प्रॉब्लम्स थी, लेट अस सी दैट वी विल डू इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस।
Now, economic crises such as failure of monsoon, drought, decline in agriculture production, serious food shortage, depletion of foreign exchange reserve, drop in industrial production and exports. अब आपको पता है जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो इकोनॉमिक क्राइसिस था, मैंने आपको बताया ऑलरेडी 2 वॉर्स हम कह दो हार चुके थे, ठीक है, बहुत पैसा हमारा उसमें वेस्ट हो चुका था, ऊपर से मानसून नहीं अच्छे से आया, ड्रॉट पड़ गया और ऐसा पड़ा कि बिहार में ये कहा जाता है मिलियंस डाइड इन दैट ईयर, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे और ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है उसके जो प्राइजेस है वो बहुत कम थे, फूड की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, और जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करने में वो भी कम होते जा रहे थे और इंडस्ट्रीज़ में जब पैसा नहीं है तो इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, एक्सपोर्ट्स भी कहाँ से होंगे जब इंडस्ट्रीज़ ही नहीं चल रही, और तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। सो ये सिनेरियो था इंडिया का उस वक्त। सो फर्स्ट डिसीजन ऑफ द इंदिरा गांधी वॉज टू डीवैल्यूएट इंडियन रुपी। तो इंदिरा गांधी ने 1967 में प्राइम मिनिस्टर बन के एक बहुत यू कैन से स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया, जो हम कहते हैं कि बड़ा एक बोल्ड डिसीज़न लिया। उस बोल्ड डिसीज़न में इंदिरा गांधी ने क्या किया, शी डीवैल्यूएटेड इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो कम कर दी। अब जब किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होती है ना तो प्राइजेस इनॉर्मसली हाई हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। आप लोगों ने जर्मन की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, यू हैव डन हिटलर के टाइम की, देन फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ी है कि जब उनकी कंट्रीज़ की करेंसी के रेट डाउन हुआ, वैल्यू डाउन हुई तो उनकी जो इवन अ पीस ऑफ ब्रेड वॉज सोल्ड इन मिलियंस, ठीक है, तो प्राइजेस कैसे इतने हाई हो गए। तो जब इंदिरा गांधी ने भी इंडियन रुपी को डीवैल्यूएट किया तो लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो करेंसी के रेट डाउन हो रहे हैं, सेकेंडली प्राइसेस चीज़ों के बढ़ते जा रहे हैं। कॉमन पीपल 1967 60s का टाइम पीरियड है, इंडिपेंडेंस हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड पीपल दे आर नॉट हैविंग मैनी थिंग्स इन देयर हैंड, कंट्रीज अंडर डेवलप्ड, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से चीज़ों के रेट बढ़ जाए तो ऑब्वियसली पीपल दे वेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, लोग इनके खिलाफ जाने लगे, लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि जो प्राइसेस एसेंशियल कमोडिटीज़, ज़रूरी कमोडिटीज़ है उनके रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं, फूड की स्कासिटी आती जा रही है और जब काम ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो इसके अलावा लोगों ने बंद लगाने शुरू कर दिए, बंद मीन्स जो रोक लगा देते हैं, हड़ताल करते हैं। सो ये एक कॉमन चीज़ हो गई थ्रू आउट द कंट्री और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ये नहीं देखा कि ये लोगों का एक्सप्रेशन है हमारी तरफ, हमने जो पॉलिसीज़ निकाली है उसकी तरफ ये लोग भड़क रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझा कि लॉ और ऑर्डर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी मतलब लोगों की भावनाओं, लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझा गया और इसकी वजह से कम्युनिस्ट एंड सोशल पार्टीज़ वो मतलब इकट्ठी हो गई और वो प्रोटेस्ट करने लगी। ये सारी अपोजिशन पार्टीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट थी, तो वो इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने लग गए इक्वालिटी के लिए कि इक्वालिटी होनी चाहिए कंट्री में। इक्वालिटी बिल्कुल नहीं थी बिकॉज पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर के प्राइसेस के गुड्स बिल्कुल डाउन आ गए थे और फूड शॉर्टेज हो गई थी एंड मतलब एवरीवेयर देयर वाज कियोस, ठीक है, जब इंदिरा गांधी 1967 में प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो दीज वर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय हर। Okay, so next is fall of the Congress for general election 1967. Now I told you in 1967 elections, Indira Gandhi, she became PM and she was getting the support of syndicates. बट जब 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद, उस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनको लगा कि अब हमारा मौका है, मतलब अब हम भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के बीच में भी टसल चल रही है और जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दी है शी इज़ वेरी वीक पर्सन, बहुत वीक है, जिसकी वजह से इनको लगा, अपोजिशन पार्टीज़ को लगा कि अब हमारा मौका है, हम अब आगे आ सकते हैं। तो अभी 1967 के इलेक्शंस हुए नहीं थे, अभी होने थे। 1966 में ही जितनी अपोजिशन पार्टीज़ थी वो सारी इकट्ठी हो गई,
ठीक है, इकट्ठी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज साइड पे रखी और वो सारी की सारी पार्टीज इकट्ठी होकर दे ऑल केम अंडर वन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला के अंडर आगे अपने आइडियोलॉजीज को छोड़ा और अपने डिसीजन लेने लगे कि अगर वो अपोजिशन सारा जीतता है तो किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी और कैसे एडजस्टमेंट करनी है, ये सब डिसीजन होने लगे। तो जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे राम मनोहर लोहिया, यू रिमेंबर इनका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में भी किया है, तो राम मनोहर लोहिया और इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सो दिस सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने इस सारे जब ये ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई अंडर वन अम्ब्रेला अगेंस्ट कांग्रेस, इसको एक नेम दिया स्ट्रेटजी को, डेट इज नॉन कांग्रेसिज्म। ओके, सो दिस नेम वाज गिवन बाय राम मनोहर लोहिया। तो फाइनली 1967 के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, बट इट वॉज कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक, एक भूचाल सा आ गया था जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में, सारी ऑपोजिशन इकट्ठी है, फिर भी कांग्रेस जीत गई, बट कांग्रेस वैसे नहीं जीती जैसे वो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में बड़े धूम धड़ाम से जीतती थी, जितने उनको 70% सीट्स मिलती थी वो ऐसे नहीं जीती। इंदिरा गांधी की कैबिनेट के जो ज़्यादातर मिनिस्टर्स थे, जो 1966 की कैबिनेट, 3rd जनरल इलेक्शन के जो ज़्यादा मिनिस्टर्स थे, जैसे कामराज फ्रॉम तमिलनाडु, SK पाटिल महाराष्ट्र, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल, KB सहाय, और ये सारे के सारे सिंडिकेट्स थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे सिंडिकेट्स थे, ये सारे के सारे 1967 के इलेक्शंस हार गए। दे इवन डिड नॉट बिकम द दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये MPs भी नहीं बन पाए, ये सारे के सारे हार गए। और स्टेट्स में भी क्या था, कांग्रेस ने 9 स्टेट्स में कांग्रेस हारी। पहले तो सारी की सारी स्टेट्स में कांग्रेस होती थी, 7 में तो हारी, 7 में तो मेजॉरिटी मिली नहीं, और 2 स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे डिफेक्शन हो गया, मीन्स बंदे खड़े तो कांग्रेस की तरफ से हुए बट जीतने के बाद वो किसी और पार्टी में चले गए, ठीक है। तो ये 2 स्टेट्स ऐसी थी, जो टोटल 9 स्टेट्स थी 1967 इलेक्शंस में, विच वर नॉन कांग्रेस स्टेट्स, जिनमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। तो आप ज़्यादातर देखो ये कौन सी स्टेट्स हैं, ये सारी वो स्टेट्स हैं जो यू कैन से नॉर्थ इंडिया में है। दीज आर ऑफ साउथ इंडिया, ये ईस्ट में है, ठीक है, इवन दिस इज़ इन ईस्ट। बाकी की सारी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है जहाँ पे कांग्रेस को बहुत कम मेजॉरिटी मिली, जहाँ पे जिन स्टेट्स में इंदिरा गांधी हारी। स्टेट मीन्स, क्योंकि मैंने आपको बोला अभी तक क्या हो रहा था, जब जनरल इलेक्शंस होते थे तभी स्टेट इलेक्शंस भी होते थे। तो जनरल इलेक्शंस में तो इंदिरा गांधी जीती, बट उतनी वोट्स नहीं मिली जितनी पहले मिलती थी। और ये लास्ट पॉइंट जो हम कर रहे हैं, ये हम स्टेट गवर्नमेंट्स का कर रहे हैं, ये वाली स्टेट गवर्नमेंट्स नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट्स थी। यहाँ पे द कांग्रेस पार्टी इट डिड नॉट वन एनी सीट, ठीक है। तो इसी के कारण वी कैन से कि जो कांग्रेस थी अभी थोड़ी सी नीचे ही थी, अभी वो पावर में नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पावर में नहीं आ रही थी एज अ इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट लेट अस टॉक ऑफ मद्रास। आप ये पहले मैप देखिए, मैप में दिस कंप्लीट येलो एरिया इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय कांग्रेस, और बाकी जितना भी रेड एरिया है तो ये सारा का सारा नॉन कांग्रेस। नीचे केरला, तमिलनाडु, और ये ऊपर सी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार इस देयर, उत्तर प्रदेश, देन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, दिल्ली का भी कुछ हिस्सा। तो ये नॉट दिल्ली, सॉरी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट है। ये सारे का सारा एरिया वी कैन से यहाँ पे नॉन कांग्रेस है। ये कहा जाता था जिसने दिल्ली से बंगाल या उड़ीसा जाना है ना, वो सारा उन एरिया से जाएगा जहाँ पे कांग्रेस नहीं है। तो ये एक कहावत सी बन गई थी, बिकॉज सी ओवर हियर कंप्लीट नॉर्थ इंडिया कांग्रेस वॉज नॉट देयर, एंड देन इन एक्सट्रीम साउथ अगेन कांग्रेस वॉज नॉट देयर। ओके, सो अगर हम मद्रास की बात करते हैं तो ये सारे का सारा जो कांग्रेस का फॉल हुआ कब हुआ, 1967 के इलेक्शंस में, ठीक है। तो मद्रास में DMK पार्टी ये पावर में आई, और ये फर्स्ट टाइम था कि नॉन कांग्रेस पार्टी कहीं पे कंप्लीट पावर में आई थी ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबडी, ठीक है। रीजनल पार्टी बेसिकली, नॉट नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी जो पावर में आई थी अपने आप पहली बार, तो ये मद्रास में आई। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें तो बाकी स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लग गई। कोलिशन गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, व्हेन 2-3 पार्टीज दे जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म देयर गवर्नमेंट।
तो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनने लग गई आइडियोलॉजिकली डाइवर्स ग्रुप, मतलब उन सबकी अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पार्टीज हैं, सबकी अलग अलग सोच होगी, आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग होगी, तो इनको कोलिशंस को कहा जाता था संयुक्त विधायक दल, SVD गवर्नमेंट्स, ठीक है, जहाँ जहाँ ये बनने लग गई, मतलब मेजॉरिटी रीजनल पार्टीज़ को किसी को भी नहीं मिलती थी, तो आपस में मिलके उन्होंने संयुक्त विधायक दल बनाने शुरू कर दिए या कोलिशन बनाने शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स फॉर्म की डिफरेंट स्टेट्स में। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में सोशलिस्ट पार्टीज़ ज़्यादा पॉपुलर थी, SSP, PSP, CPI, जनसंघ, ये चारों की चारों पार्टीज इकट्ठी हुई और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट, मतलब आप ये चीज़ देखो, चार चार पार्टी से इकट्ठी होकर गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, किस लिए? सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस के अगेंस्ट जाने के लिए। पंजाब में भी अकाली फैक्शंस थे, अकाली ग्रुप्स थे, जो संत के ग्रुप्स थे या मास्टर्स के ग्रुप्स थे, CPI, फिर CPIM, रिपब्लिकन पार्टी, जनसंघ, ये इतनी सारी पार्टीज इकट्ठी हुई 1967 में पंजाब में, एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट इन पंजाब अगेंस्ट द कांग्रेस। सो यू सी हाउ द फॉल ऑफ कांग्रेस स्टार्टेड, कैसे धीरे धीरे कांग्रेस ख़त्म हो रही थी, कैसे धीरे धीरे उनकी जो मेजॉरिटी है वो कम होती दिख रही थी। सो दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द स्टेट जो हमने मैप में देखा है कि कैसे वहाँ पे नॉन कांग्रेस पार्टीज जीती और कांग्रेस का सफाया हुआ उन स्टेट्स में से। अब इसके बाद आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मिड टर्म इलेक्शंस। अब मिड टर्म इलेक्शंस क्या होता है? सबसे पहले एक टर्म कितना होता है गवर्नमेंट का? 5 इयर्स। वो टर्म कंप्लीट पूरा नहीं हो पाता या नहीं कर पाए और बीच में दोबारा से इलेक्शंस हो जाएं, गवर्नमेंट वहीं पे डिसॉल्व हो जाए और दोबारा इलेक्शंस हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली मिड टर्म इलेक्शंस। अब क्या हुआ? अब मैंने आपको बताया कि 1967 के इलेक्शन, 4th जनरल इलेक्शन में जीती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को जिताने में काफ़ी हद तक सपोर्ट की थी सिंडिकेट्स की, ठीक है, सिंडिकेट्स आते थे इसके थ्रू हम रूल करेंगे, फाइन, उनका ये था। और उधर से सारी की सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो यूनाइट हो गए थे, अपनी आइडियोलॉजीज़ को साइड पे रखे वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे अगेंस्ट कांग्रेस, फाइन। पर जितने भी सिंडिकेट्स थे वो सारे ये जो जनरल इलेक्शंस थे वो हार गए और वो MPs भी नहीं बने, वो बिल्कुल बाहर हो गए। बट फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कंट्रोल करना चाह रहे थे। उनको था कि हम तो जीते नहीं बट फिर भी हम इंदिरा गांधी को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनको तो ये लगता था ना हमने जिताया इसे, फाइन। तो इससे क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में टसल हो गई, एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक लड़ाई वाली सिचुएशन हो गई जिससे कांग्रेस स्प्लिट हो गई, कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, ठीक है। जो इंदिरा गांधी थी वो खुद भी सिंडिकेट्स का जो इन्फ्लुएंस है उससे दूर हटना चाहती थी, क्योंकि वो जो चीज़ें, वो जो चेंजेस लेके आना चाहती थी, वो जो करना चाहती थी एज प्राइम मिनिस्टर, सिंडिकेट्स उसे करने नहीं देते थे। क्योंकि इंदिरा गांधी वो चाहती थी सोशलिज्म अप्रोच हो, इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, सोशलिज्म होता है, प्रो पुअर पॉलिसीज़ बने, पुअर के फेवर में पॉलिसीज़ बने, तो ये सारी चीज़ें चाहती थी। बट सिंडिकेट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे थे ये सब देने, ये सब चीज़ें करने के लिए, फाइन। जिसकी वजह से वो सिंडिकेट्स के इन्फ्लुएंस से हटना चाहती थी और ये कहा जाता है कि वो जो स्प्लिट करवाया था कांग्रेस पार्टी का, बंटवारा करवाया था, वो इंदिरा गांधी ने ही करवाया था, इंदिरा गांधी की वजह से ही हुआ था। अब क्या स्टोरी थी इसके पीछे? ये 1971 में दोबारा से इलेक्शन कैसे हो गई? इंदिरा गांधी का टर्म पूरा क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का टाइम आया, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर, इंदिरा गांधी इज प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का टाइम आया। 1969 में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने थे, ठीक है। Now the split in Congress after president election 1969 brought the government to minority. अब हुआ क्या? जब प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए तो जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट था, हिज नेम वाज नीलम संजीव रेड्डी। बट अब ये कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल कैंडिडेट खड़ा किया कि कांग्रेस की तरफ से ये प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए है। बट जो इंदिरा गांधी थी वो सीक्रेटली जो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, वो उनको सपोर्ट दे रही थी, ठीक है, वो उनको जिताना चाह रही थी वीवी गिरी को। और वो ओपनली अपनी पार्टी मेंबर्स से कहते थे कि पार्टी के अकॉर्डिंग वोट मत करो, वोट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियस, जो तुम्हें ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग करो, जो तुम्हें लगता है कि हु कैन बी बेटर हु कैन बी बेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी को वोट करो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की सपोर्ट से जो संजीव रेड्डी थे वो तो हार गए और वीवी गिरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए।
ठीक है। तो इससे कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट आ गया, इससे कांग्रेस पार्टी में एक लड़ाई वाली सिचुएशन आ गई। काफ़ी सिंडिकेट्स तो हार गए थे, काफ़ी सिंडिकेट्स जो ऑलरेडी पार्टी में थे, उन्होंने जो उस वक्त पार्टी के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको उसी के पार्टी के लोग बाहर निकाल दें। फाइन। सो कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया 1969 में प्रेसिडेंट इलेक्शन के एकदम बाद, क्योंकि सबको पता चल गया कि इन्होंने जो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट था उसको तो वोट की नहीं, बट वीवी गिरी को सपोर्ट दी और वीवी गिरी ही बन गए हैं। सो यू कैन सी दिस कार्टून, कैन यू सी, ये इंदिरा गांधी है, ये वीवी गिरी जो जीते हैं, और ये कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है दैट इज़ संजीव रेड्डी, वो गिरे पड़े हैं और कांग्रेस का प्रेसिडेंट उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा गांधी सपोर्टिंग वीवी गिरी हु हैज़ वन। सो दिस इज़ द कार्टून रिलेटेड टू दैट। फाइन। तो सबको पता चल गया कि इंदिरा गांधी ने सीक्रेटली वीवी गिरी को सपोर्ट किया, तो इसीलिए इनको कांग्रेस पार्टी से हटा दिया गया और कांग्रेस के दो हिस्से हो गए। एक तो थी कांग्रेस ओ, दैट इज़ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिंडिकेट्स या पुरानी वाली कांग्रेस आप लगा लो। एक न्यू बन गई कांग्रेस आर, दैट इज़ कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट। रिक्विजिशनिस्ट ये याद रखना, यू कैन राइट इट डाउन। कांग्रेस आर रिक्विजिशनिस्ट, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी थी। फाइन। तो जब स्प्लिट आ जाता है ना रूलिंग पार्टी में, इसका मतलब इंदिरा गांधी की मेजॉरिटी हट गई, मेजॉरिटी हट गई तो गवर्नमेंट गिर गई। यही केस होता है ना 1969 में। बट यहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट नहीं गिरी, क्योंकि इंदिरा गांधी के सपोर्ट जैसे ही हटी, कांग्रेस ओ के लोग जैसे ही हटे, उन्होंने बोला कि हमें इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने किया हुआ है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो जैसे ही उन लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस हटाया, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने के लिए आ गई सीपीआई और डीएमके। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, सीपीआई दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके जो तमिलनाडु में जीती थी। क्यों अब इन्होंने क्यों इंदिरा गांधी को, ये तो पार्टी से अगेंस्ट थी इंदिरा के, पर इन्होंने सपोर्ट क्यों किया, क्या रीज़न था? क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक जो कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट आया था, वो किसकी वजह से आया था? वो जो इंदिरा गांधी न्यू पॉलिसीज़ लेके आना चाहती थी, जो प्रो पुअर पॉलिसीज़ थी और सोशलिस्ट पॉलिसीज़ थी। तो सीपीआई और डीएमके भी उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती थी। इसलिए प्रो पुअर पॉलिसीज़ के लिए, पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए, भले के लिए सीपीआई और डीएमके ने इंदिरा गांधी की पार्टी को सपोर्ट दे दी, मेजॉरिटी दे दी, जिसकी वजह से उसकी गवर्नमेंट नहीं गिरी और जिसकी वजह से उसकी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बच गई। ठीक है। बट इंदिरा गांधी के पास अभी उतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी जितनी उसको न्यू पॉलिसीज़, न्यू रूल्स लाने के लिए जितनी उसको सपोर्ट चाहिए थी, मेजॉरिटी चाहिए थी, उतने लोग नहीं थे। मीन्स लोगों ने इंदिरा गांधी को वीक समझा, बट शी वॉज नॉट वीक, शी वॉज वेरी डेयरिंग, यू कैन से लीडर, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। ठीक है। तो सिंडिकेट्स को था एक कमज़ोर है, वीक है, हम अपना दबदबा चलाएंगे, इसको बना दिया पर चलेगी हमारी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्प्लिट आ गया, वो सिंडिकेट के इन्फ्लुएंस से फ्री हो गई एंड 1967 में पार्टीज दो हिस्सों में बट गई। दो हिस्सों में बटने की वजह से मेजॉरिटी कम हो गई, माइनॉरिटी में आ गई रूलिंग पार्टी। जब रूलिंग पार्टी माइनॉरिटी में आ जाती है ना, तो कांग्रेस गवर्नमेंट गिर जाती है, न्यू इलेक्शंस होते हैं। बट वो केस नहीं हुआ क्योंकि डीएमके और सीपीआई ने अपनी सपोर्ट दे दी और वो मतलब गवर्नमेंट गिरने से बच गई। फिर एक इंदिरा गांधी ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया। लेट अस टॉक ऑफ नाउ दिस मिड टर्म इलेक्शन की बात करते हैं 1971 की। ये क्या थे? बड़ा बोल्ड स्टेप लिया इंदिरा गांधी ने 1971 में। इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट को बोलती है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, लोकसभा को ख़त्म कर दो। यू नो व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा, तो गवर्नमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाती है और फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। तो शी रिक्वेस्टेड द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा, जो एक बहुत बोल्ड स्टेप था उस टाइम में, जिस लेडी को इतना वीक समझा जा रहा था। सी हाउ शी इज़ टेकिंग द स्टेप्स एंड फ्रेश इलेक्शंस वर देयर। फिर फ्रेश इलेक्शंस हुए जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन, क्योंकि ये टर्म ख़त्म होने से पहले ही इलेक्शंस हो गए थे। सो यू जस्ट सी 1967 में इलेक्शंस हुए थे, 67, 68, 69, 70, 71, 72 में नेक्स्ट इलेक्शन होने थे, बट उससे वो टर्म ख़त्म होने से पहले ही 71 में मिड टर्म इलेक्शंस करवा दिए गए। तो
इंदिरा गांधी अपना बैकग्राउंड तो क्रिएट कर चुकी थी, इसको डर तो, क्योंकि पहले वो सिंडिकेट्स की हेल्प से जीती थी, अब वो ये सब नहीं चाह रही थी, वो अपने दम पे लड़ना चाह रही थी। तो 1971 में जब मिड टर्म इलेक्शंस के लिए शी वेंट टू प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बना लिया था इलेक्शन से पहले, क्योंकि कैसे बना लिया था, बार बार वो सबको पता था कि कांग्रेस टूट गई है क्योंकि इंदिरा गांधी पुअर के लिए कुछ करना चाह रही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जितने भी पुअर थे दे ऑल केम इन सपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी। इसको अब वोटों की तो कमी थी नहीं इंदिरा को, ठीक है। तो उन्होंने अपने इंदिरा गांधी, शी स्टार्टेड टेलिंग द पीपल, स्टार्टेड टेलिंग द कंट्री कि शी वांट्स इक्वालिटी ऑफ ऑल, पुअर पीपल को खास करके सबकी बराबरी चाहती है। रिविजन ऑफ प्रिंसली रूलर्स, पेंशन, जो प्रिंसली रूलर्स थे, यू रिमेंबर व्हेन इंडिया गॉट डिवाइडेड, और जितने प्रिंसली रूलर्स थे इंडिया में, सरदार पटेल ने उनको मनाया था इंडिया का पार्ट बनने के लिए, बट इस शर्त पे कि उन लोगों को हर साल पेंशन मिलेगी उनकी पैलेस मेंटेन करने के लिए, उनके खर्चे के लिए। तो उनका जो ठाट बाट है, उनका स्टेटस है, उन चीज़ों को के खर्चों के लिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलेगी। तो इंदिरा गांधी चाहती थी वो पेंशन हटे, क्योंकि वो तो इक्वालिटी चाह रही थी ना, तो उन लोगों को स्पेशल इंपॉर्टेंस क्यों मिले जब वो इंडिया का हिस्सा बन गए हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इंदिरा चाह रही थी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, की बैंक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद पीडीएस सिस्टम चाह रही थी। पीडीएस सिस्टम यू हैव रेड इन इकोनॉमिक्स, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें गरीब लोगों को खाना आइदर फ्री में और बहुत कम रेट्स पे दिया जाएगा, ठीक है, सब्सिडाइज रेट्स पे दिया जाएगा। और इसने अपना जो इलेक्शन का जो मोटो बनाया, दैट वाज वेरी कैची, गरीबी हटाओ। तो ये जो मतलब स्लोगन था, ये इटसेल्फ ही बहुत कैची था, जिससे ज़्यादातर मैक्सिमम इंडियन पीपल दे वांटेड टू बी विद इंदिरा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने ये 1971 के इलेक्शन की रिक्वेस्ट करने से पहले कि न्यू इलेक्शंस करवाओ, अपना पूरे का पूरा बैकग्राउंड सेट कर लिया था, जिसमें मेनी पीपल दे वर इन सपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी, फाइन। तो ये जो इंदिरा गांधी ने तो अपना स्लोगन रखा था गरीबी हटाओ, और अपोजिशन पार्टीज क्या कह रही थी, इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी ये कह रहे थे कि इंडिया को कि आप देख लो कि आपने गरीबी हटानी है कि आपने इंदिरा हटानी है, तो इट इज़ अप टू यू, तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कार्टून है, आई हैव टोल्ड यू, दिस इज ऑफ 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का है, जिसमें वीवी गिरी इज विनिंग बिकॉज ऑफ इंदिरा सपोर्ट, एंड कांग्रेस के जो संजीव रेड्डी थे जो कैंडिडेट थे वो हार गए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस सेकंड कार्टून, इट इज़ गिवन इन योर बुक, यू नीड टू डू इट। ये सेकंड कार्टून मिड टर्म इलेक्शन का है, जिसमें जस्ट सी देखा जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे इंदिरा गांधी के ही चांसेस है जीतने के, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बना रखा है, अपने पॉलिसीज़ ऐसे देने की सोच रखी है कि पीडीएस सिस्टम होगा, बैंक्स नेशनलाइज होंगे जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, ये पेंशन जिनको मिल रही है वो हटेगी, इक्वालिटी होगी लोगों के लिए, प्रो पुअर पॉलिसीज़ होंगी, पुअर पीपल के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ होंगी। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी शी हैड डन, जिसकी वजह से she was getting the support of many people. Okay, now let us read this. The split in Congress after presidential election of 1969 brought the government to minority. इंदिरा की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई। फिर सीपीआई ने सपोर्ट किया, जिससे इंदिरा की गवर्नमेंट डूबने से बच गई। और 1971 की स्टोरी मैंने आपको बताई है कि उन्होंने कैसे मिड टर्म इलेक्शंस करवाए बाय रिक्वेस्टिंग द प्रेसिडेंट। अब जब 1971 के इलेक्शन हुए तो अब उसका रिजल्ट देखते हैं। कांग्रेस वन मोस्ट सीट्स देन एवर, ठीक है। बीच में 1967 के इलेक्शन में याद है मैंने आपको कहा था कांग्रेस को बड़ी कम सीट्स मिली, बहुत कम सीट्स मिली। यू कैन नो सी ओवर हेयर, जस्ट सी इन दिस मैप कि कैसे कांग्रेस ये सारा रेड एरिया इट इज़ नॉन कांग्रेस स्टेट्स। बट ये जो दोबारा मिड टर्म इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी ने जो अपना एजेंडा दिया लोगों को कि क्या पॉलिसीज़ लाने वाली है, उसकी वजह से इंदिरा गांधी दोबारा से ऊपर आई, दोबारा से कांग्रेस पार्टी को एक इम्पोर्टेंस मिली, बहुत अच्छी सीट्स मिली। कांग्रेस और सीपीआई को कंबाइन किया गया, क्योंकि सीपीआई ने यहाँ पे इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था, सो कांग्रेस और सीपीआई ने कंबाइन करके 375 सीट्स ली। और सून इसके बाद जल्दी ही 1971 का टाइम है, दोबारा से इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ
जिसमें यू हैव डन अबाउट बांग्लादेश वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमने किया है। 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ था, ठीक है। इंडो पाकिस्तान वॉर बोला जाता है क्योंकि बेसिकली वॉर हमारा पाकिस्तान के साथ था, बट फ्री बांग्लादेश हुआ था। तो इसमें इसकी वजह से भी क्योंकि उस वॉर में इंडिया जीता था, बांग्लादेश को फ्रीडम मिल गई थी, पाकिस्तान को हरा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। और 1972 में स्टेट्स में इलेक्शंस हुए। 1971 में ये जो मिड टर्म इलेक्शन हुए ये सिर्फ सेंटर के हुए हैं, अदरवाइज तो सेंटर और स्टेट्स के इलेक्शन इकट्ठे चल रहे थे अभी तक फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन में, बट ये मिड टर्म इलेक्शन में सिर्फ सेंटर में हुए थे। स्टेट के इलेक्शन 1972 में हुए, जिसमें अगेन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में दोबारा से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई विद इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर, ठीक है। तो ये जो इंडो पाक वॉर है इसने भी इंदिरा गांधी को काफ़ी पॉपुलैरिटी दी, क्योंकि इसके जो डिसीजंस थे इंदिरा गांधी के जिसके कारण हमारा इंडिया जीता पाकिस्तान से। सो इट लेड टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। रिस्टोरेशन मीन्स दोबारा से कांग्रेस उठ के आया, ठीक है, दोबारा से कांग्रेस उठा मैनी स्टेट्स में। येट कांग्रेस लॉस्ट इट्स प्रीवियस कैरेक्टर, बट हम ये कहेंगे कि जो कांग्रेस का एक्चुअल कैरेक्टर था पहले वो अब नहीं आया था। तो एक्चुअल करेक्टर क्या था, क्या नहीं आया था, इसका क्या मीनिंग है। 1971 जो हम कह रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस का, बट फेस जब दोबारा कांग्रेस उठी 1972 के इलेक्शंस में, 67 वाले में तो नीचे गिरती गई, 72 में या 1971 और 72 में जब दोबारा उठी तो इसको रिस्टोरेशन बोला जाता है, बट नॉट विथ सेम फेस। सेम फेस मीन्स पहले जैसे कांग्रेस थी वैसी नहीं रही, कांग्रेस कंप्लीटली बदल गई थी। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटली चेंज। पहले क्या था कांग्रेस में, एवरी मीन्स लीडर इन द कांग्रेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्लियर कांग्रेस को माना जाता था इट इज़ मल्टीट्यूड ऑफ लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स है कांग्रेस में। उसके बाद ये माना जाता था कांग्रेस में एक ही लीडर है, दैट इज इंदिरा गांधी। वन ओनली, एक ही लीडर का मतलब ओनली वन इंपॉर्टेंट लीडर इंदिरा गांधी। पहले क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते थे मैंने आपको बताया था, जो लड़ाइयाँ होती थी टॉलरेंस होती थी, रिजॉल्व किए जाते थे। बट अब क्या था कि अगर आप इंदिरा की बात मान रहे हो, सुन रहे हो तो आप पार्टी में रहो, नहीं तो आप पार्टी छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। और इंदिरा गांधी बहुत सारी चेंजेस लेके आई जब ये 1971 में पावर में आई। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसने चेंजेस किए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, ये आपने क्लास 11th में भी किया है। और क्या क्या चेंजेस थे, एक तो मैंने आपको बताया ना एनुअल पेंशन ऑफ रूलर्स, वो ख़त्म कर दी गई, बैंक्स नेशनलाइज कर दिए गए, इक्वालिटी की कोशिश की गई, पुअर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई, और जो एनुअल पेंशन मिल रही थी रूलर्स को, जो पहले रूलर्स थे और अब इंडिया का पार्ट थे, वो ख़त्म कर दी गई। बिकॉज शी सेड कि मुझे इक्वालिटी चाहिए, और कंट्री लाइक इंडिया, जैसे इंडिया एक पुअर कंट्री है, ये इतनी पेंशन देना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए हम पेंशन नहीं देंगे, इंडिया में तो इंडिया का हिस्सा बन के रहें। राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश किया, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट टू प्रॉपर्टी, यू नो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स नाउ, बट पहले हमारी 7 फंडामेंटल राइट्स थी, और 7 फंडामेंटल राइट थी हमारी राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसको ख़त्म किया गया। इसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ये क्यों ख़त्म हुई, कैसे ख़त्म हुई, क्योंकि क्लैश आ रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स हर बंदे के पास अधिकार है, वो जितनी चाहे प्रॉपर्टी रख सकता है, बट इसकी वजह से जब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए कुछ चाहिए होता था तो लोग प्रॉपर्टी नहीं देते थे, तो वहाँ क्लैश आता था, तो इसलिए इसको एबॉलिश कर दिया गया। 1973 में, 71 में जीती, 72 में असेंबली इलेक्शन हुए, स्टेट में इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी कांग्रेस मैक्सिमम जीती। 1973 में इंदिरा गांधी शी वॉज एट द पीक ऑफ पावर, अपनी पावर के टॉप में थी, और फिर ऐसी सिचुएशन आई कंट्री में कि इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ी। यू नो इमरजेंसी इम्पोज 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी टिल 1975 टू 1.5 ईयर के लिए। और इमरजेंसी इम्पोज में क्या होता है, सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स लोगों से ले ली जाती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर्स। इमरजेंसी के ऊपर चैप्टर है, हम लोग वो करेंगे। सो शी इम्पोज इमरजेंसी। अब क्या सिचुएशंस आई, कैसे उसने इमरजेंसी इम्पोज की, वो सारा हम आगे करेंगे, ठीक है। सो यू सी हाउ कांग्रेस फॉल, 3rd जनरल इलेक्शन में, फिर मिड टर्म इलेक्शंस करवाए, कैसे इंदिरा गांधी ने पूरा अपना बैकग्राउंड सेट किया,
प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी कैसे प्रेसिडेंट भी इंदिरा गांधी के बिल्कुल कंट्रोल में थे, और फिर कैसे 1971 में इलेक्शन जीते, कैसे उन्होंने पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, फिर इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडिया जीत गया, तो असेंबली इलेक्शंस में भी लोगों ने इंदिरा को सपोर्ट किया और दोबारा से कांग्रेस उठा, बट एक चेंज फेस के साथ, एक अलग तरीके से, जहाँ पे कांग्रेस का हर लीडर इम्पॉर्टेंट नहीं था, इंदिरा गांधी इम्पॉर्टेंट थी. Is it clear? So this is regarding this mid-term elections and restoration, and with this I finish up with part 3. And one more thing, I'm not favoring any political party. This is I'm trying to explain what all happened in the history, because I'm not with BJP or I'm not with Congress or I'm not favoring any political party. I'm trying to be neutral as much as I can be. Okay, so with this I finish up with this third part, and it is up to you how you perceive the things. I just told you what has happened. So last part will continue in part 4, in which we'll be explaining the bi-party system, coalition and its features. So thank you so much for this now.